Hello everyone, welcome to PDC Classes. In this session, we have to do CBSE additional practice questions of science of class 10th. And firstly, we have to do section A. Question number 1 states that a single displacement reaction is represented below, like PQ plus R. We are given in reactant side, and in product sides, what we are given is PR plus Q. As we know, in single displacement reaction, more reactive element displace the less reactive element from its compound. Over here in this compound PQ, we can say P will be positive and Q will be negative, right ना? And what we are observing over here कि जो R है ना, that is going to displace Q. R is going to displace Q. तो obvious है R भी negative होगा because negative negative को ही displace करेगा, obvious है. Now so in the product side, P will be positive and R will be negative because जब भी आप कंपाउंड लिखोगे आयनिक कंपाउंड तो ऑब्वियस है कि जो फर्स्ट पार्ट होगा तो फर्स्ट आयन होंगे दैट विल बी पॉजिटिव and second will be negative, isn't it? Then over here we have to write Q. Okay, then what options we are given is question, which of the following is true about the reactant and products? Type of ion of R in the product. As you know कि पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन. जो भी आपके पॉजिटिव आयन होंगे दे आर कॉल्ड कैटायन, राइट. एंड व्हाट अबाउट निगेटिव आयन? जो भी आपके निगेटिव आयन होंगे दे आर कॉल्ड एनायन, एज यू नो ऑलरेडी. ऑलराइट, ओके सर. देन व्हाट अबाउट आर बेटा जी? ऑब्वियसली आर विल बी निगेटिव, मीन्स एनायन कौन? तो ऑब्वियस टाइप्स ऑफ आयन ऑफ आर बोला है ना इन द प्रोडक्ट साइड. तो आर क्या होगा बेटा? एनायन. एनायन आपका यहाँ भी है बेटा जी और एनायन आपका यहाँ भी है. नाउ स्टेबिलिटी ऑफ पी आर एज कंपेयर टू पी क्यू. एज यू नो कि जो भी आपका न्यू सब्सटेंस बनेगा इन अ केमिकल रिएक्शन दैट विल बी मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ प्रीवियस सब्सटेंस. मीन्स जो आपका पी आर होगा दैट विल मोर स्टेबल, पी आर विल बी मोर स्टेबल. तो क्या पूछा है कि स्टेबिलिटी ऑफ पी आर बताओ एज कंपेयर टू पी क्यू. तो ऑब्वियस है ना कि पी आर जो न्यू सब्सटेंस है दैट विल बी मोर स्टेबल. देन एनायन में आ जाओ, और जो पी आर है मोर स्टेबल कहाँ है बेटा? दिस वन. देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो. लाइक इफ यू आर गिवन reactant like KBr, राइट. KBr अगर रिएक्शन बेटा करता है इससे क्लोरीन से, isn't it? Cl2 से. तो एज यू नो कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन. तो क्लोरीन क्या करेगा? ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा. एंड इन प्रोडक्ट साइड व्हाट विल यू गेट? KCl. you will get KCl plus Br2, isn't it? बिकॉज जो ब्रोमीन है दैट इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरीन, एंड जो क्लोरीन होगा ब्रोमीन को क्या किया बेटा? डिस्प्लेस किया. मतलब यहाँ देखो पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे क्या है? निगेटिव. तो यहाँ जो निगेटिव क्लोरीन है दैट इज गोइंग टू डिस्प्लेस निगेटिव ब्रोमीन. तो क्या बना आपका? KCl plus Br2 प्लस माइनस, isn't it? Obviously K will be positive and this Cl will be negative. इसको बैलेंस कर सकते हो. You can write twice of KBr and over here you can write twice of KCl, isn't it? Right? Okay. Now look at the second question. Some types of chemical reactions are listed below. What kind of reactions we are given are decomposition, combination, displacement and double displacement. Which two of the following chemical reactions are of same type? Right? Okay. If you talk about reaction P, AgNO3 plus NaCl, and in product side AgCl plus NaNO3. Obviously over here what is happening? Exchanging of ion. Ag कहाँ गया? Cl के पास. Na कहाँ गया बेटा? NO3 के पास. तो exchanging of ion होगा. तो such kind of reaction will come in the category of double displacement. इसको लिखता हूँ मैं D.D, means double displacement, right? Second one देखो Mg more reactive है. This is going to displace H because जो हाइड्रोजन है that is less reactive than magnesium. तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने क्या किया? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया. Mg is going to displace the H from HCl. Then product will be MgCl2 plus H2. So such kind of reaction are called
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, राइट ना। ओके, नाउ व्हाट अबाउट आर। आर बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन है। आर क्या होगा यहाँ पे, CH4 ने ऑक्सीजन से किया, क्या बना, CO2 प्लस H2O। ये जो होगी दैट विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई कैन राइट O फॉर दिस। KOH प्लस H2SO4, यहाँ भी क्या हो रहा है, आयन की एक्सचेंजिंग हो रही है, मतलब ये भी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कौन कौन से रिएक्शन आपके सेम टाइप के हैं, तो ऑब्वियसली पी एंड एस। पी एंड एस, तो पी एंड एस विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? Now let's solve question number 3. It states that Neetu has two test tubes containing dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide solution, but they are not labeled. Okay, we are given our two test tube. First one containing HCl, dilute hydrochloric acid, and second one contains dilute sodium hydroxide. इसमें क्या रखा हुआ है, मतलब बेस रखा हुआ है, दैट इज NaOH. ऑल राइट, फर्स्ट में क्या एसिड है, दैट कंटेन्स HCl. नाउ adding which of the following solutions to the test tubes will help her visually identify the acidic and basic solution. Means visually उसे identify करना है with the help of this, कि which test tube contain acid and which test tube contains base. Firstly let's understand by vinegar. एज यू नो बेटा कि जो विनेगर की केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट, इथेनोइक एसिड, लाइक CH3COOH, इजंट इट। ये एसिड से तो रिएक्शन नहीं करेगा, अगर इसने बेस से रिएक्शन किया, लाइक NaOH से रिएक्शन किया, ऑल राइट, तो यहाँ क्या बनाएगा बेटा, जब ये बेस से रिएक्शन करेगा लाइक NaOH से, लाइक NaOH, ऑल राइट, तो इसकी H प्लस और इसकी OH माइनस, दोनों मिलकर क्या बनेगा, वाटर। और यहाँ क्या बनेगा बेटा, CH3COO, CH3COONA, isn't it, प्लस वाटर। यहाँ से आप आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाओगे ना कि विच वन इज एसिड विच वन इज बेस, राइट। ये प्रोडक्ट बना आपका, राइट ना, तो यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी एसिड है और कौन सी बेस है, विजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट करते हैं विद हेल्प ऑफ बेकिंग सोडा। तो वी नो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, दैट इज व्हाट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, इजंट इट। अगर आपने बेकिंग सोडा की रिएक्शन करवाई किसी HCl से, HCl, वी नो वन थिंग कि वेन एवर एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कोई भी एसिड अगर बेटा कार्बोनेट से या फिर बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या सॉल्ट फॉर्म होने वाली है, NaCl। ओवर हेयर सॉल्ट विल बी NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इजंट इट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बबल्स दिखेंगे, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी बेटा, रिलीज होगी ना, तो उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे होगी आपकी ब्रिस्क एफरवेसेंस, राइट ना। तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई अगर CO2 रिलीज हो रहा है, मीन्स हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, बेकिंग सोडा को जो बाइकार्बोनेट है उसके रिएक्शन किससे करवाई है बेटा, एसिड से। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई कि जो भी आपका टेस्ट ट्यूब है वो एसिडिक है, राइट। क्योंकि एसिडिक टेस्ट ट्यूब से जो HCl रखा हुआ है उसकी रिएक्शन अगर हमने करवा दी सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो ऑब्वियस है प्रोडक्ट NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस CO2 बनेगा। जो CO2 है ना बेटा, CO2 की जो रिलीज होगी CO2 यहाँ जो इवॉल्व होगा, राइट ना, तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन से कि जो हमने बेकिंग सोडा की रिएक्शन करवाई है वो एसिड से करवाई है। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई कि विच टेस्ट ट्यूब कंटेन HCl, इजंट इट, मतलब उसमें क्या रखा हुआ है, एसिड रखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा जी, बेकिंग सोडा। विनेगर इज रॉन्ग ऑप्शन, ऑलरेडी वी हैव सीन, तो बेकिंग सोडा विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी। या फिर आप एक काम कर सकते हो, CO2 क्या करता है बेटा, लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, तो CO2 की अगर प्रेजेंस डिटेक्ट करनी है आपको तो वी कैन रिएक्ट विद लाइम वाटर, लाइक जो CO2 है बेटा, अगर आपने इसको किसके पास करवाया, लाइम वाटर से, COH होल ट्वाइस, जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज व्हाट, CaCO3 प्लस H2O, इजंट इट। तो ये जो CaCO3 है बेटा, ये क्या होती है, मिल्की होती है, इजंट इट। तो दिस मिल्कीनेस विल टेल यू कि हमने क्या किया, ये CO2 है उसको किससे पास करवाया बेटा, लाइम वाटर से,
तो क्या बना आपका CaCO3, राइट ना। तो ये मिल्कनेस क्या बता रही है, कहीं ना कहीं हमने CO2 को पास करवाया है, राइट ना। किसी और गैस को अगर लाइम वाटर से पास कराएंगे तो जो आपका सॉल्यूशन होगा दैट विल नॉट टर्न्स मिल्की। इज इट क्लियर? ओनली सोडियम क्लोराइड नो, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाओगे तो आप वहां पे विजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन सी एसिडिक है कौन सी बेसिक है। नाउ लेट्स सी डी पार्ट, इधर विनेगर और सोडियम क्लोराइड। नो, ऑलरेडी सोडियम हमने विनेगर को क्रॉस कर दिया है, और सोडियम क्लोराइड से भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि विच टेस्ट टू बी एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि आवर बी ऑप्शन इज करेक्ट, isn't it? Fourth question. Fourth question states that Sonia has aqueous solutions of three salts: sodium acetate, sodium chloride, and ammonium chloride. Let me write the chemical formula of all these salts. Firstly, we are given sodium acetate. The chemical formula of sodium acetate will be beta NaOCH3, isn't it? Sodium acetate. Next is sodium chloride, NaCl. Next, ammonium chloride, NH4Cl. All right. Okay. The test tubes are not labeled. On checking, she finds the pH of the solutions to be 4.6. बेटा इट इज ऑब्वियस ना कि अगर pH 4.6 होगी तो क्या होगा बेटा, एसिडिक होगा, सॉल्ट विल बी एसिडिक, राइट। एंड अगर pH बेटा जी 7 है तो ऑब्वियसली सॉल्ट विल बी न्यूट्रल, एंड इन केस ऑफ pH मोर देन 7 क्या होगी बेटा, बेसिक सॉल्ट, राइट। क्या होंगे, बेसिक होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच द सॉल्ट विद देयर रेस्पेक्टिव pH। नाउ टेल मी वन थिंग कि जो भी सॉल्ट होंगे बेटा इसके वन पार्ट किससे बने होंगे, बेस से, एंड सेकेंड पार्ट एसिड से बने होंगे। ये बात समझ आई क्या? फॉर एग्जाम्पल ये आपका NaCl है बेटा, तो NaCl में जो Na है ना वो हो गया आपका पॉजिटिव, Cl क्या होगा बेटा, निगेटिव। तो जो Na आया होगा वो कहाँ से आया होगा बेटा, बेस से आया होगा। वी हैव टू चेक कि ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है या स्ट्रॉन्ग या फिर Cl स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, राइट। वी हैव टू चेक दैम। सिमिलरली इसमें भी देखिए Na कहाँ से आया होगा बेटा, बेस से। सोडियम आयन ये क्या किस कहाँ से आया होगा, सोडियम आयन जो होगा दैट विल कम फ्रॉम द बेस। एंड ये जो आपके हैं एसीटेट आयन ये कहाँ से आएगा, निगेटिव वाले बेटा जी, ये आएंगे आपके एसिड से। ऑल राइट, यहाँ भी जो अमोनियम कहाँ से आया होगा बेटा, बेस से, प्लस एंड जो क्लोरीन आयन है, क्लोराइड आयन है, ये कहाँ से आया होगा बेटा, एसिड से आया होगा। नाउ वी हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन योर माइंड। वी हैव टू लर्न सम नेम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्या करने हैं आपको, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है उनको आपको नेम याद रखने हैं। लेट मी राइट ओवर हियर स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ऑल राइट, तो आपको इतने याद रखने के दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो भी आपके रिमेनिंग एसिड होंगे दे विल बी द वीक एसिड। ऑल राइट, सिमिलरली वी हैव टू लर्न some name of strong base, some name of strong base, right? Okay, like LiOH, then KOH, NaOH, all right, COH whole twice, and BaOH whole twice, all right, okay। ये जो है बेटा आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अप टू क्लास 10 आपको बस इतनी याद रखना है कि ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे जो रिमेनिंग एसिड्स होंगे जो दिखेंगे आपको अप टू क्लास 10 आई एम टॉकिंग अबाउट, उनको आपको क्या बोलना है, उनको बोलना है वीक एसिड। इसके अलावा जो भी आपके बेस दिखेंगे दे विल बी द वीक बेस। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंक अबाउट दिस कंपाउंड सोडियम एसीटेट। बेटा सोडियम एसीटेट में बताओ जो सोडियम है, जो आपका सोडियम है वो बताओ क्या स्ट्रॉन्ग बेस का है पार्ट है, वीक बेस का पार्ट। देखो सोडियम यहाँ आया क्या, हाँ, तो मीन्स जो सोडियम है बेटा जी कहाँ से आया होगा बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस।
स्ट्रॉन्ग बेस, इन शॉर्ट एस बी लिखता हूँ मैं, राइट ना। अब देखो एसीटेट आयन बेटा, इसमें कहीं एसीटेट आयन जो होगा वो एसिड से आया होगा, क्या इसका कहीं पार्ट है एसीटेट आयन, बताओ। नहीं है ना बेटा, तो मतलब क्या होगा ये आपका होगा वीक एसिड, क्या होगा बेटा, वीक एसिड। इज इट क्लियर नाउ। अब देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो बेटा सोडियम क्लोराइड में क्या आइडेंटिफाई करना है कि सोडियम बताओ बेस से आया होगा, तो आपको ये चेक करना है कि क्या सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया है या नहीं आया है। सोडियम यस यहाँ पे है ना बेटा सोडियम, ये किसका पार्ट है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस का, दिस विल बी पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। क्लोरीन देखो एसिड में है क्या, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पार्ट है क्लोरीन, ये क्या होगा बेटा जी, ये होगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑल राइट, अच्छा अमोनियम, अमोनियम कहाँ से आया होगा बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। ऑल राइट, तो क्या इसमें कहीं दिख रहा है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नो, मीन्स ये जो पार्ट होगा दैट हैज कम फ्रॉम वीक बेस, वीक बेस। एंड क्लोरीन कहाँ से आओगे बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड। इज इट क्लियर। अब यहाँ देखिए अगेन सोडियम एसीटेट वी टॉक अबाउट ना, ठीक है, सोडियम क्या है एसीटेट है, या सोडियम इथेनॉइड भी बोल सकते हैं आप इसे। तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, देखो बेस स्ट्रॉन्ग है एसिड वीक है, डोमिनेट कौन करेगा, बेस। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट विल बी दिस, ऑब्वियसली बेसिक सॉल्ट बेटा, कौन सी सॉल्ट होगी बेटा, दिस वन इज बेसिक सॉल्ट, ये आपका होगा बेसिक सॉल्ट। इज इट क्लियर। देखो फिर से दोनों पार्ट देखने हैं, सोडियम कहाँ से आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है यस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, ये एसीटेट आयन है बेटा जी, ठीक है। ये कहाँ से आया होगा, ऑब्वियसली आया होगा इथेनोइक एसिड से, तो आपको पता है जो इथेनोइक एसिड है दैट इज वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट और वीक एसिड का पार्ट, तो स्ट्रॉन्ग है वो डोमिनेट करेगा ना सर, तो जो सॉल्ट होगी दैट विल बी बेसिक सॉल्ट। इज इट क्लियर नाउ। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कहाँ से आया होगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, मतलब एक किसका पार्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से किसका पार्ट है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आएगा ना आपका क्लोरीन, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। सॉल्ट क्या होगी, न्यूट्रल, सॉल्ट क्या होगी बेटा, न्यूट्रल, ये जो कॉमन सॉल्ट है जो कि हम लेते भी हैं खाने में, राइट ना, तो ना तो एसिडिक होगा ना ही बेसिक हो, कैसे होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट है। इफ यू टॉक अबाउट अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ऑल राइट, तो बेटा जो अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम कहाँ से होगा, वीक बेस से, क्योंकि इसके पार्ट नहीं है तो हम मान के चलेंगे वीक है, इजंट इट। तो ये कहाँ से है बेटा जी, वीक बेस, और क्लोरीन हमें पता ही है किस एसिड से आया होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा सर। तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस है ना यहाँ पे, सॉरी यहाँ गलत देखा मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑल राइट, क्लियर है बातें। तो वीक बेस का पार्ट हो गया, ये क्या होगा बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट होगा, इजंट इट। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन डोमिनेट करेगा, एसिड। तो व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट इज दिस, ऑब्वियसली एसिडिक सॉल्ट, दिस वन विल बी द एसिडिक सॉल्ट। इज इट क्लियर। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे पीएच वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑल राइट, तो देखो जो आपसे बोला है कि सोडियम एसीटेट है बेटा, सोडियम एसीटेट, पीएच कितना बोला है, मैंने बोला ना इसमें सारे एसिडिक ही होंगे, तो क्या सोडियम एसीटेट एसिडिक है, देख लेते हैं, नहीं, ये ऑप्शन फॉल्स हो गया बेटा, आगे क्यों बढ़ना जब यहीं पे फॉल्स हो गया तो। ऑल राइट नाउ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या एसिडिक है, सोडियम क्लोराइड एसिडिक है, नो, ये भी ऑप्शन फॉल्स हो गया बेटा। ऑल सोडियम क्लोराइड देखो ना उसकी पीएच 4.6 नहीं होगी ना बेटा, बिकॉज ये न्यूट्रल सॉल्ट है, तो ऑब्वियसली पीएच 7 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्यों चेक करना है जब यही फॉल्स हो गया। नाउ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बेटा कैसा एसिडिक है, हाँ तभी तक ठीक है जी अमोनियम क्लोराइड। सोडियम एसीटेट क्या बोला, न्यूट्रल, सोडियम एसीटेट नो सर बेसिक सॉल्ट है, ये भी फॉल्स हो गया, इसमें हम दो स्टेप के बाद क्या बोल दिए कि फॉल्स है। ऑल राइट, तो अब ऑप्शन डी बच गया, करेक्ट होना भी चाहिए, लेट्स चेक। अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है क्या, अमोनियम क्लोराइड यस सर एसिडिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट है क्या, सोडियम क्लोराइड यस न्यूट्रल सॉल्ट है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, सोडियम एसीटेट क्या बेसिक सॉल्ट है, यस सर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल, yes or no? Now look at fifth question beta. Fifth question states that galvanization is a process of coating iron particles with a layer of zinc
टू द प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ऑब्वियस सी बात है, गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं हम, जिंक की कोटिंग करते हैं आयरन पे, सो दैट आयरन क्या होता है, रस्ट नहीं लगता है, राइट ना। तो आयरन इज प्रोटेक्टेड इवन इफ जिंक कोटिंग इज स्क्रैच एंड, यस, मतलब अगर जिंक कोटिंग स्क्रैच हो गई फिर भी क्या होता है, आयरन जो होता है प्रोटेक्टेड होता है, एंड आयरन इज एक्सपोज्ड। ऑल राइट, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाउ जिंक प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देख सकते हो ना बेटा, ये जो बकेट वगैरह होती है हमारे बाथरूम वगैरह में, तो क्या होते हैं, गैल्वेनाइज होते हैं, उसको हम कई साल यूज करते हैं फिर भी वो इजिली क्या होते हैं, मतलब प्रोटेक्टेड होते हैं, इजिली जो है डिस्ट्रॉय नहीं होते, उसमें इजिली रस्ट नहीं लगता है। इज इट क्लियर? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाउ जिंक प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। जिंक क्या होता है खुद, मतलब क्या होता है उस पे, उसमें कोरोजन होते हैं। ऑल राइट ना। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 states that galvanization is the process of coating iron articles with a layer of zinc to prevent the iron from rusting. The iron is protected even if the zinc coating is scratched and iron is exposed. All right. तो भी नो ना कि जो भी गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें क्या होती है, कोटिंग होती है जिंक की, सो दैट जो हमारा आयरन होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, वहाँ रस्ट नहीं लगता। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, जो हमारे घरों में बाथरूम में बकेट्स वगैरह होते हैं, इजेंट इट, तो उसमें क्या होती है बेटा, गैल्वेनाइज्ड होते हैं वो आयरन, उसमें इजीली रस्ट नहीं लगते हैं और सालों साल चलते भी हैं बकेट्स। ऑल राइट। तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाउ जिंक प्रिवेंट्स द रस्टिंग ऑफ आयरन। अ गैल्वेनाइज्ड आयरन आर्टिकल्स डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। नो, ये तो ऑब्वियसली करता है ना बेटा, आज जो आपका जिंक है वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और क्या होगा, आयरन को प्रोटेक्ट करेगा। इज इट क्लियर? ये ऑप्शन क्या बेटा, फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो होता ही है। ऑल राइट। नाउ जिंक कोटिंग प्रिवेंट कॉन्टेक्ट ऑफ आयरन विद एयर। यस, इट इज ट्रू। ये जो जिंक की जो कोटिंग होगी वो प्रिवेंट करेगा ना, ताकि आयरन जो है वो क्या हो, एयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए। इजंट इट? ओके। फिर बोला है जिंक अंडरगोज corrosion more easily than iron. yes, because बेटा जो जिंक है ना, दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। इजंट इट? आपने पढ़ रखा है बेटा, MnCZn, याद करो रिएक्टिव में पहले Mn आता है, CZnFe। इजंट इट? तो जो आपका जिंक है, जो आपका क्या है बेटा, जिंक है, दैट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। इजंट इट? तो जिंक क्या होगा बेटा, इट अंडरगोज corrosion more easily than iron. It's also correct. So Q and R portion, Q and R are correct options. All right. So which option is correct over here? D. Is it clear? Now look at sixth question. Sixth question states that during the purification of metal by electrolysis, what happened at the negative electrode? बेटा firstly tell me one thing कि जो नेगेटिव आयन होते हैं ना, जो आप क्या होंगे, नेगेटिव आयन होंगे। ऑल राइट, दे आर कॉल्ड एनायन, दे आर कॉल्ड एनायन। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हो, एनायन बोलते हो। ऑल राइट, ओके जी। नेक्स्ट, जो आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हो, इसको कैथोड बोलते हैं, बस याद रखना है। इज इट क्लियर? एंड पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज्ड। एंड व्हाट अबाउट अ पॉजिटिव टर्मिनल, या फिर बोल सकते हो क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैं, दे आर कॉल्ड एनोड, दे आर कॉल्ड एनोड। इज इट क्लियर? ओके। बोला कि ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस व्हाट हैपन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब बताओ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स क्या हुआ सर, ऑब्वियसली कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स क्या होगा बेटा, कैथोड। ऑल राइट। तो व्हाट वी हैव स्टडीड इज कि एट द कैथोड, एट द कैथोड मेटल्स आर डिपॉजिटेड। कैथोड पे क्या होता है, जो भी मेटल्स है, मान लो मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम आयन है बेटा, क्या होगा, सोडियम आयन जो है ना, वो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन क्या किया, लिया, तो प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, सोडियम एटम बनाएगा। यस और नो, सोडियम मेटल बनाएगा। इज इट क्लियर? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब एक कैथोड पे क्या होते हैं, प्योर मेटल्स आके डिपॉजिट होंगे, ऑब्वियस सी बात है।
इजंट इट। और वहां पे क्या होगी, जो भी मेटल्स होंगे वो पहले तो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, राइट। आयन क्यों बना है, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन इसने लॉन्च किया एनोड पे, वो क्या हाँ आगे आएगा कैथोड पे आके उसको गेन करेगा। कैथोड पे आके क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, राइट। और क्या बनाएगा आपका, सोडियम बनाएगा। तो देखते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो पूछा है मेटल आयन लूज इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल, नहीं यहाँ पे आके लूज नहीं करते, गेन करते हैं बेटा। क्या करते हैं यहाँ पे आके, गेन करते हैं सर, राइट। न्यूट्रल मेटल्स नहीं, न्यूट्रल तो नहीं आएंगे यहाँ पे, कौन से आएंगे, यहाँ पे कैटायंस आएंगे बेटा। क्या बनाएंगे, न्यूट्रल एटम बनाएंगे। अगेन जो भी आपके निगेटिव इलेक्ट्रोड है एट कैथोड, आई एम टॉकिंग अबाउट एट कैथोड, मतलब कैथोड पे क्या होगा, कैसे एटम्स आएंगे बेटा, यहाँ पे आएंगे और भी कैटायंस आएंगे बेटा। क्या आएंगे यहाँ पे, कैटायन आएंगे, पॉजिटिव आयन वाले आएंगे मेटल्स। और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेंगे एंड दे विल फॉर्म न्यूट्रल मेटल, इजंट इट। ओके, तो क्या बोला है कि न्यूट्रल मेटल एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रल तो आएंगे नहीं यहाँ पे। ऑल राइट, ओके। न्यूट्रल मेटल एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन, नहीं यहाँ आके लूज नहीं किया, वो ऑलरेडी लूज कर चुका है, यहाँ आके क्या किया, गेन किया। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज मेटल आयंस गेन इलेक्ट्रॉन, मेटल आयंस गेन इलेक्ट्रॉन टू बिकम न्यूट्रल मेटल एटम्स, इजंट इट। यहाँ पे क्या बनाया इसने, न्यूट्रल मेटल एटम्स बनाया। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट सेवेंथ क्वेश्चन। Seventh question states that metals are lustrous and shine, especially when their freshly cut surface are exposed. All right. Salma cut pieces and compared the luster of freshly cut surface of the following metals: aluminium, sodium, copper, iron. The freshly cut surface of which of these metals is likely to lose its luster first on exposure to air? बेटा पहले कौन लस्टर अपनी लूज करेगा, चमक कौन लूज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसकी कलर पहले जाएगी, क्योंकि क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब भी आप रखोगे उसको एयर में, तो क्या एयर में ऑक्सीजन भी है, मॉइस्चर भी है, इजंट इट। तो वहां पे पहले कौन रिएक्शन करेगा बेटा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और वो अपनी लस्टर लूज करेगा, अपनी साइन लूज करेगा। तो अमोंग ऑल दिस टेल मी वन थिंग कि विच वन इज मोर रिएक्टिव, तो ऑब्वियसली सोडियम इज मोर रिएक्टिव, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, इजंट इट। ओके, तो सोडियम बेटा मोर रिएक्टिव है ना, तो पहले कौन लूज करेगा, ऑब्वियसली सोडियम करेगा। तो विच ऑप्शन करेक्ट, बी। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट एट्थ क्वेश्चन बेटा जी। Its question states that which of the following statements is true about the uptake of water in the plants? Uptake of water in the plants. बोला it occurs all the time due to diffusion. No, already we have studied. B option, water enters the root due to osmosis. Yeah, we have studied one thing बेटा कि osmosis में क्या होता है, osmosis में जो होगा substance will move from high concentration to low concentration through SPM, through SPM, isn't it? तो रूट के अराउंड क्या होगा बेटा, एक स्मॉल क्या होंगे बोल सकते हो, मेम्ब्रेन होगा। उसके थ्रू क्या होगा, मतलब आउटसाइड द रूट वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, रूट के अंदर क्या है, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज लो। तो वाटर विल मूव ना, वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड द रूट टू द इनसाइड द रूट थ्रू द SPM and that is called osmosis. So obviously this option is correct, isn't it? कि water enter the root due to osmosis, because root के अंदर क्या है, वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है लो है, एंड आउटसाइड द रूट, अगर सॉइल में बात करोगे तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या हाई है। यहाँ वाटर कैसे मूव हो रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन, रूट है ऑब्वियसली उसके अराउंड मेम्ब्रेन है ना, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है। तो दिस ऑप्शन करेक्ट, सी भी देख लेते हैं। At night, when transpiration is low, root do not take up water. No, it's false. Because night time में हमने पढ़ा है रूट प्रेशर, रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है बेटा, वाटर जो होता है मूव करता है अपवर्ड। ऑल राइट, ये ऑप्शन भी फॉल्स है। डी, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लिव्स इज बाई डायरेक्शनल। नो बेटा, इट्स यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे जो फूड का मूवमेंट होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल, इजंट इट। ये ऑप्शन भी क्या आपके फॉल्स है। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट नाइन्थ क्वेश्चन। Ninth question states that oxygen saturation level, oxygen saturation level, excuse me,
ऑक्सीजन saturation level refer to the extent hemoglobin is bound to oxygen. As latitude increases, the atmospheric pressure decreases. Yes. Which of the following graph correctly represent the oxygen saturation level as altitude increases? तो बेटा as you know कि as altitude increases oxygen level decreases, isn't it? जैसे जैसे क्या होगी, अब मैक्सिमम हाइट पे जाएंगे तो जो ऑक्सीजन का लेवल होगा डेट विल बी लो ना, ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या होगी बेटा, लो होगी, isn't it? ऑक्सीजन की जो भी सेचुरेशन होगा वो क्या होगा, लो होगा। ऑल राइट, तो यहाँ देखो इस केस में क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे बढ़ रही है तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया ऑक्सीजन सिचुएशन, फिर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा ना कि एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ बढ़ेगा फिर कम होगा, ऐसा तो नहीं होगा। दिस ऑप्शन इज फॉल्स। ऑल राइट, ना ओवर हियर जैसे जैसे क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, तो वाई पे क्या हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो ऑब्वियसली आज वी इंक्रीज द एल्टीट्यूड ऑक्सीजन सेचुरेशन विल डिक्रीज, दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लुक एट सी ऑप्शन, इसमें क्या हो रहा है देखो, पहले बढ़ रहा है ना ऑब्वियसली, तो यहाँ बढ़ेगा तो नहीं ना सर। डी ऑप्शन क्या है, कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है यार, जो एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ऑक्सीजन क्या होगी, डिक्रीज होगी, यहाँ क्या बोला, कांस्टेंट होगी, नॉट पॉसिबल एट ऑल। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, देन वी कैन से क्यू ऑप्शन, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इज इट क्लियर? नाउ लुक एट टेंथ क्वेश्चन। टेंथ क्वेश्चन states that which of the following methods are useful to prevent fertilization even when ovulation occur? All right, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सर्जिकल ब्लॉकिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब, बात बताओ बेटा जी कि ओवुलेशन तो हो चुका है ना, हाँ सर, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है बेटा, तो ऑब्वियसली यार फेलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है बेटा क्या, फर्टिलाइजेशन। जब इसको ब्लॉक कर दोगे तो क्या स्पर्म यहाँ एंटर कर पाएगा? भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन जो होती है आपके मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की, मतलब स्पर्म और एग का जो फ्यूजन होता है वो कहाँ होता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो अगर आपने फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया तो क्या वहाँ पे स्पर्म अप्रोच कर पाएगा? नहीं करेगा सर। जब वहाँ पे स्पर्म अप्रोच नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, इजंट इट? नाउ कॉपर टी, बेटा कॉपर टी क्या करता है, कॉपर टी क्या करता है, जो मोटिलिटी है ना स्पर्म की उसको डिक्रीज करेगा। तो मोटिलिटी स्पर्म की डिक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल राइट, ठीक है जी। नाउ ओरल पिल्स, बेटा ओरल पिल्स क्या करता है, आपकी ओवुलेशन को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, इजंट इट? तो अब यहाँ बोला है कि ऑलरेडी आपका ओवुलेशन हो चुका है तो इससे कोई फायदा नहीं है फिर तो। ऑल राइट, ओरल पिल्स यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, बिकॉज ओरल पिल्स का काम क्या होता है बेटा, कि हार्मोन जो काम होता है उसको अनबैलेंस करना, इजंट इट? और ओवुलेशन को क्या करना, स्टॉप करना, इट के लिए। तो यहाँ पे बोला कि ऑलरेडी आपका ओवुलेशन हो चुका है तो यहाँ पे ओरल पिल से फर्टिलाइजेशन को आप स्टॉप नहीं कर सकते। दिस ऑप्शन इज फॉल्स। नाउ कॉन्डम, यस, इससे क्या होगी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, राइट ना, फ्यूजन नहीं होगा स्पर्म का एग के साथ। इज इट क्लियर? देन व्हाट ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, पी क्यू एस, लेट्स चेक पी क्यू एस, या ऑप्शन से इज करेक्ट बेटा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन से इज करेक्ट ओवर हियर। इज इट क्लियर?